Good morning class. Today I will explain you chapter 1 which is external parts of the body. Now everyone please open your EVS book which is We and Our Surroundings and open page number 8. Now today we will start with the sense organs as we have learned about the external parts of the body in our previous class. So today I will explain you about the sense organs. Now I am going to read it. You just also read with me. We have 5 sense organs. They are eyes, ears, nose, tongue and skin. Our sense organs make us aware of the surroundings. So they are also called the magic organs. It means that we have 5 sense organs. Means हमारे पांच तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? What are they? They are eyes, ears, nose, tongue and skin. There are 5. What are they? Eyes, ears, nose, tongue and skin. Our sense organs make us aware of the surroundings. जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमें हमारी सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर करते हैं. दैट हाउ आर दे. So they are also called the magic organs. That is why they are also known as magic organs. Means that sense organs are also called as magic organs. Sense organs को ही magic organs भी कहते हैं. Now number 1 is our eyes. Let us read what these organs do for us. Now first is eyes. We see with our eyes. Our eyes need light to see. So we cannot see much when it is dark. Our eyes make tears all the time. It means that जो हमारे we see with our eyes means हम लोग किससे देखते हैं? We are able to see with our eyes. If we don't have our eyes, we will not be able to see our surrounding. हम लोग देख नहीं पाएंगे अगर हमारे पास आईज नहीं होगी. और हम what our eyes need to see? Our eyes needs light to see. जब डार्क होता है या लाइट चली जाती है या वी कैन से जब रात होती है अंधेरा होता है तो क्या होता है? हमें चीजें दिखाई नहीं देती हैं. बट जैसे ही हम लोग रूम में लाइट को ऑन करते हैं वी आर एबल टू सी द थिंग्स इन आवर रूम. सो दिस प्रूव्स दैट कि जो हमारी आईज हैं वो उन्हें लाइट चाहिए चीजों को देखने के लिए. सो वी कैन नॉट सी मच व्हेन इट्स डार्क. दैट इज वाई जब डार्क होता है, जब अंधेरा होता है तब हम चीजों को देख नहीं पाते हैं बहुत अच्छे से. और आवर आईज मेक टीयर्स ऑल द टाइम. जो हमारी आईज हैं ये हमेशा क्या करती हैं? टीयर्स बनाते हैं. Tears means आंसू. Now on our next page there is ears. We hear with our ears. The funny shape of our ears help us to catch sounds from the air. The sounds then go into the hidden parts of our ear. Animals like rabbits can move their ears to help them catch sounds. Can you also move your ears? This means that जो हमारे ears होते हैं they help us to hear. ears हमें हेल्प करते हैं hear करने में. we use ears to hear the sound. hear means सुनना. now the funny shape of our ears help us to catch sounds from the air means जो हमारे ईयर का जो फनी सा शेप है वो हमें हेल्प करता है साउंड्स को कैच करने में. कहाँ से साउंड्स कैच करते हैं? फ्रॉम द एयर. एयर में जो भी साउंड्स प्रेजेंट होती हैं उसको हमारे ईयर्स का जो फनी शेप है उसको कैच करता है. तो एयर में कौन सी साउंड्स प्रेजेंट होती हैं? एयर में साउंड्स प्रेजेंट होती हैं जैसे कि बर्ड्स चिर्पिंग, देन एनिमल साउंड एंड अदर साउंड्स आल्सो. देयर आर सो मेनी लाइक इफ समवन इज प्लेइंग अ म्यूजिक or listening a music.
then we listen music. So then the sounds then go to the hidden part of our ear. जो sound होती है वो क्या होती है, फिर जो हमारे ear का hidden part है वहां तक जाती है. hidden means छुपना. तो जो हमारे ईयर के जो हिडन पार्ट्स हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते हैं या जो छुपे हुए हैं, वी आर नॉट एबल टू सी दोस पार्ट्स, उन पार्ट्स तक की साउंड जाती है. नाउ द एनिमल्स लाइक रैबिट्स कैन मूव देयर ईयर्स टू हेल्प देम कैच साउंड्स. एनिमल्स लाइक रैबिट्स, नाउ रैबिट, व्हाट रैबिट्स कैन डू? Rabbits can move their ears to help them catch sounds. Means जो rabbits हैं वो अपने ears को move कर सकते हैं sound को catch करने के लिए. Now our next sense organ is nose. We smell things with our nose. Nose catches thin bits of particles from the air and sends message to our brain. This way we smell the things. Animals like dogs, cats and rats smell better than us. Now जो nose होती है, what it does? Nose helps us to smell the things. So now what does nose do? Nose जो होती है वो जो air में जो thin bits होते हैं particles के, उनको catch करती है और कैच करने के बाद इट सेंड्स मैसेज टू आवर ब्रेन. मीन्स दैट वो एक मैसेज अपने ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है, उसको सेंड करती है. दिस वे वी स्मेल द थिंग्स. पहले नोज ने क्या किया? एयर से पार्टिकल्स को कैच किया और फिर हमारे ब्रेन में एक मैसेज सेंड किया. इस तरह से हम लोग स्मेल करते हैं. व्हाट वी स्मेल? वी स्मेल द फ्रूट्स, फूड एंड flowers, fragrance of a flower. So nose helps us to smell, or just to differentiate between the smells, that which smell is a good smell or which smell is a bad smell. Now animals like dogs, cats and rats smell better than us. Now and कुछ animals ऐसे animals जैसे कि dogs, cats और rats, ये सब हमसे बेटर मीन्स अच्छे, अच्छा, ये सब हमसे अच्छे स्मेल कर सकते हैं, हमसे अच्छा स्मेल कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर बेटर देन अस. सो नोज हेल्प्स अस टू स्मेल द थिंग्स. नाउ आवर नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज टंग. वी टेस्ट थिंग्स विद आवर टंग. टंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक एंड sing. The tongue is covered with tiny bumps called taste buds, which sends messages to our brain about the things we eat or drink. It means that जो tongue है, what our tongues do? Our tongue helps us to taste the things. Taste means चखना. Means food को जैसे हम लोग क्या करते हैं, we taste ना, that it is sweet or sour. So we taste the food from with the help of our tongue. So tongue also helps us. Now our next sense organ is tongue. Tongue, we taste things with our tongue. Tongue also helps us to speak and sing. The tongue is covered with tiny bumps called taste buds, which send messages to our brain about all the things we eat or drink. This means that जो tongue होती है वो हमें help करती है things को taste करने में. What our tongues do? Our tongue helps us to taste the things. चीजों को taste करने में हमारी tongue हमें help करती है. After that, tongue also helps us to speak and sing. जो हमारी tongue है ये हमें help करती है speak करने में और sing करने में. Speak means बोलना और sing means गाना गाना. तो जो हमारी tongue है वो हमें help करती है बोलने में और
गाने में. Now the tongue is covered with tiny bumps called taste buds. जो हमारी टंग है ये कवर्ड होती है बहुत ही छोटे छोटे, टाइनी मीन्स स्मॉल, तो बहुत ही छोटे छोटे बम्प्स से पूरी हमारी टंग कवर्ड होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज टेस्ट बड्स. एंड व्हाट आवर टेस्ट बड्स डू? टेस्ट बड्स सेंड मैसेजेस टू आवर brain about all the things we eat or drink. टेस्ट बड्स हमारे ब्रेन को एक मैसेज सेंड करती है किस बारे में? जो भी चीजें हमने खाई हैं या फिर पी हैं, the things which we eat or drink, उसके बारे में एक मैसेज हमारे ब्रेन को टेस्ट बड्स सेंड करता है. नाउ जैसे कि when we eat the chocolate, we get to know that it is sweet in taste, and when we eat a chili, then we get to know that it is chill, and when we eat an ice cream, we get to know that it is cold, and when we drink a tea or a coffee, we get to know about that it is hot. So our tongue helps us to taste the things. Now our next and the last sense organ is skin. We feel hot and or cold, rough or smooth with our skin. It covers our whole body and protects it from the outside world. Now what does skin do? Skin helps us to feel. स्किन हमें हेल्प करती है फील करने में. क्या फील करने में? हमारी सराउंडिंग्स को. इफ वी टच एन आइस, अगर हम आइस को टच करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? दैट इट इज कोल्ड. और इफ वी टच अ हॉट वाटर, देन वी गेट इट नो दैट द वाटर इज हॉट, मतलब गर्म है. एंड कोल्ड मीन्स ठंडा. Then rough or smooth. Suppose we get a jelly. तो जेली कैसी होती है? जेली स्मूथ होती है. एंड व्हाट अबाउट रफ? रफ में हम लोग क्या कहते हैं? रफ लाइक वॉल. इफ वी टच अवर वॉल, देन वी गेट इट नो दैट द वॉल इज रफ. Means it is not smooth just like a jelly. With our skin, जो हमारी स्किन होती है वो, उससे हमें पता चलता है कि थिंग्स कैसी है या फिर हमारी सराउंडिंग कैसी है. ना जो स्किन होती है वो हमारी होल बॉडी को कवर करती है. इट कवर्स आवर होल बॉडी. इट कवर्स आवर होल बॉडी मीन्स वो हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, और हमें प्रोटेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से, मीन्स जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उससे. नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज एंड सी ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर लिविंग थिंग्स. नाउ ह्यूमन इज द वाइजेस्ट एंड सुप्रीम लिविंग बीइंग. ही excels all other animals in intelligence. It is because the human has the most developed brain. The well-developed brain enables man to think ideas, make conclusions and decisions. Human differs all other living beings in the following ways. This means that कि जो ह्यूमन होता है वो वाइजेस्ट और सुप्रीम होता है सारे लिविंग बींग्स. मीन्स जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सब में सबसे वाइजेस्ट और सबसे सुप्रीम मतलब सबसे अच्छा कौन है? वो ह्यूमन है. ह्यूमन कौन है? वी आर द ह्यूमन बींग्स. तो हम लोग एनिमल्स और जितने और ट्रीज, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सबसे हम लोग सुप्रीम है. वी आर द वाइजेस्ट. उनसे हम लोग काफी बेटर है, बहुत अच्छे. Why? Because he excels all other animals in intelligence. क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो एक्सेल करते हैं अदर एनिमल्स से.
जितने भी एनिमल्स हैं उन सब से हम लोग एक्सेल करते हैं, किसमें? इंटेलिजेंस में। एक्सेल मीन्स आगे, मीन्स टू बिकम अ फर्स्ट। तो जितने भी एनिमल्स हैं उन सब से हम लोग इंटेलिजेंस में क्या है? बहुत अच्छे हैं। तो इट इज बिकॉज द ह्यूमन हैज द मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन। क्यों? इट इज बिकॉज हम लोग एक्सेल क्यों करते हैं इंटेलिजेंस में? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट है हमारी बॉडी का। जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा डेवलप है ह्यूमंस का अकॉर्डिंग टू अदर लिविंग बींग्स और एनिमल्स। Now, the well-developed brain enables man to think ideas, make conclusions and decisions. जो हमारा well-developed brain है, मतलब जो हमारा ब्रेन है वो हमें हेल्प करता है कंक्लूजन्स बनाने में, मेक कंक्लूजन्स, मेक आइडियाज एंड डिसीजंस। कोई नया आइडिया चाहिए होता है तो हमारा ब्रेन हमें आइडिया देता है, हमारा ब्रेन हमें हेल्प करता है। कंक्लूजन मीन्स किसी चीज के रिजल्ट पर आना, दैट मीन तो वो होता है कंक्लूजन, किसी भी चीज को कंक्लूड करना। जैसे कि मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया तो क्या हुआ, आपको क्या समझ में आया, वो हो गया उसका कंक्लूजन मीन्स रिजल्ट। तो हमें किसी भी चीज का रिजल्ट निकालने के लिए हमें कंक्लूजन्स, हमारा ब्रेन हमें हेल्प करता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें डिसीजन लेने में हमारा ब्रेन हमें हेल्प करता है। आफ्टर दैट ह्यूमन डिफर्स ऑल द अदर लिविंग बींग्स इन द फॉलोइंग वेज। अब जो ह्यूमंस हैं वो और भी काफी चीजों में अदर लिविंग बींग्स को डिफर करते हैं। डिफर मीन्स डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे human is the only living being which moves fully erect on two legs। जो humans हैं वो ही एक ऐसे living beings हैं जो कि मूव करते हैं टू लेग्स पे, जो सिर्फ दो पैरों पर चलते हैं। और जो अदर लिविंग बींग्स हैं दे मूव ऑन फोर लेग्स। अदर लिविंग बींग्स मूव ऑन फोर लेग्स और विद द हेल्प ऑफ विंग्स और फिन्स। मीन्स जो अदर लिविंग बींग्स हैं वो फोर लेग्स पे मूव करते हैं, जैसे कि काऊ, डॉग, एलिफेंट, जिराफ एंड सो मेनी एनिमल्स। देन और विद द हेल्प ऑफ विंग्स और फिंग्स, विंग्स की हेल्प से कौन मूव करता है? बर्ड्स के पास विंग्स होती हैं, देन दे कैन फ्लाई। और फिन्स जो है फिशेस के पास होती हैं, जिसके थ्रू से दे आर एबल टू, जिसकी हेल्प से दे आर एबल टू स्विम। सम अदर लिविंग बींग्स डू नॉट हैव लेग्स। और बहुत कुछ लिविंग बींग्स ऐसे होते हैं जिनके पास लेग नहीं होते, तो व्हाट दे डू, दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड। क्रॉल मीन्स रेंगना, वो जमीन पर ही रेंगता है। Now, human is the only living being who can use his hands for grasping things and picking and carrying objects, and he can also move his fingers. This means that जो human beings हैं यही ऐसे एक living beings हैं जो अपने hands को हम लोग use कर सकते हैं grasping the things. Grasping means किसी भी चीज को पकड़ना, grasp करना। And picking means उठाना, and carrying objects, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैरी करना। Then he can also move his fingers। और ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं? अपनी फिंगर्स को मूव कर सकते हैं। Then human eyes are large and placed in front of the face. This enables them a clear sight। जो ह्यूमन की जो आईज होती हैं वो क्या होती हैं? दे आर लार्ज, वो बड़ी होती हैं और वो फेस के सामने, इन फ्रंट ऑफ द फेस, दे आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द फेस। फेस के बिल्कुल मिड में सामने ही आईज होती हैं। एंड अदर एनिमल्स और बर्ड्स में क्या होता है? उनकी साइड में होती हैं, तो जिसकी वजह से
उनके पास क्लियर साइट नहीं होता है. साइट मीन्स व्यू. तो उनके पास एक क्लियर व्यू नहीं होता है इन कंपैरिजन टू द ह्यूमन बीइंग्स. आफ्टर दैट humans use their brain to make tools and fire. They then started living in families, groups and well organized societies. They learnt art, culture, farming, reading and writing. Humans are therefore called the thinking animal. Now जो humans होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ब्रेन को यूज करके, अपने ब्रेन की हेल्प से फायर और टूल्स को बनाते हैं. वी कैन मेक फायर और टूल्स फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रेन. देन what they did, they started living in families, groups और well organized societies. फिर वो लोग families में रहने लगे, मतलब अपनी अपनी एक एक उन्होंने फैमिली बना ली. देन ग्रुप्स मीन्स इन द ग्रुप ऑफ 2, 3, 4, इस तरह से उन्होंने ग्रुप्स बना लिए और इस तरह से रहने लगे. देन फिर वो धीरे धीरे वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज में शिफ्ट हो गए. जैसे कि आजकल हम लोग रहते हैं सोसाइटीज में, वैसे ही. देन दे लर्न आर्ट, कल्चर, फार्मिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. फिर उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने आर्ट सीखी, कल्चर सीखा, फार्मिंग सीखी, रीडिंग सीखी और राइटिंग सीखी. कल्चर मीन्स हमारी जो कल्चर है, इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर्स, वो सारे कल्चर सीखे. फार्मिंग मीन्स खेती करना सीखा उन्होंने. रीडिंग मीन्स पढ़ना सीखा, रीड करना सीखा. एंड राइटिंग मीन्स लिखना सीखा. देन ह्यूमंस आर देयरफॉर कॉल्ड अ थिंकिंग एनिमल. ना तो इसीलिए जो ह्यूमंस हैं उनको हम लोग बोलते हैं थिंकिंग एनिमल. थिंकिंग एनिमल मीन्स वो एनिमल्स और वो बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स जो कि थिंक कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द थिंकिंग एनिमल. थिंकिंग मीन्स सोचना. And this completes our chapter 1, external parts of the body. Now all of you take out your EVS fair copies and put heading chapter 1, external parts of the body. Now we will do the difficult words in the copy.